have something exciting, and the highlights of today's event is our very, very interactive session, which is between Mr. Asim Khan, joined by Nikhil Pansar. The session is named as Janta Ke Sawal, Experts Ki Rai, where we all will have the opportunity to ask questions directly to our panel of experts. So may I request Mr. Nikhil Pant and Mr. Asim Khan to please come up on the stage. To introduce Mr. Asim Khan is the head of CSR at Cadence Design System. With his extensive experience in CSR, Asim is committed to fostering meaningful dialogue between experts and the community. He will extensively. Nikhil Pansar is a leading authority on CSR in India. With over 30 years of experience in the development sector, he has played a pivotal role in shaping India's CSR landscape. He is currently chairman and CEO of Racha and founder of Lakshya. His expertise spans CSR policy, strategy, implementation and impact assessment, making him a valuable contributor to our discussion on Janta Ke Sawal and Experts Ki Rai. Please give them a huge round of applause. So Nikhil, Asim sir, the stage is yours. इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। तो आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे बुलाया है, उनके बारे में 2 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे मेंटोर भी रहे हैं, मेरे गाइड भी रहे हैं, मैंने इनके अंदर पढ़ाई भी की है। वाकई इन्होंने इबादतों की तरह ये काम किया है जो CSR जिसको हम कहते हैं। फ्रॉम नॉट ओनली फॉर्मुलेटिंग द लॉ के फॉर्मुलेशन तक ही सीमित न रहकर उसको ग्राउंड तक पहुंचाना, उसको तमाम लोगों तक उसकी अवेयरनेस करना, ये सर ने किया है और वाकई इबादतों के लिए किया। उसके लिए ये बहुत बड़े राउंड ऑफ अप्लॉज के लिए एक हकदार है। तो सर मैं आपको वहां आके ज्वाइन करता हूं। कुछ सवाल हमने एक सोशल मीडिया पे भी कैंपेन रन किया था इस प्रोग्राम के लिए कि जो भी अपने क्वेश्चंस को रिले करना चाहते हैं वो सर को डायरेक्टली रिले कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया पे भी आए हैं, बट मैं पहले स्टार्ट करूंगा सर से ये जानने के लिए कि सर व्हेन दिस CSR लॉ वाज पास्ड, तो why was it passed as a law in the parliament and how did the discussion behind the law actually start कि इसको एक लॉ बनाना है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका असीम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबडी फॉर कॉलिंग मी एंड आई विल डू अ बिट ऑफ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आई थिंक वो ठीक रहेगा बिकॉज इंग्लिश एक कम्युनिकेशन भी बेटर करता है, बट देन आई विल ऑल्सो कीप इट विथ इंग्लिश। So before I actually come to your to try and getting into a गुफ्तगू और एक सवाल जवाब के हम सिलसिला स्टार्ट करें, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ जिसका which is related to your question in some way, Asim. What I try and tell everybody is the intent behind the law. उसकी नीयत क्या है? So if you are having a paper and pen and a pad, if you can write some of these key words, that will be of great help to you in your understanding of CSR. We have 2 students also there from PhD and from Terry and from JNU who are also preparing a research kind of a document which will be shared with all of you. हम लोगों ने सोचा था कि सबको हम उसका एक आंसर्स भी बना के देंगे। तो CSR को असीम मैं क्या करता हूँ एज एन एक्रोनिम भी बोलता हूँ, CSR, कंपैशन, सेरेनिटी एंड रिफ्लेक्शन, करुणा, शांति एंड रिफ्लेक्शन इज आत्मचिंतन। तो ये एक हो गया थोड़ा सा माइंडफुल सोलफुल अप्रोच, और दूसरा उसका ग्राउंड रियलिटी है CSR विच इज C फॉर कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस, को क्रिएशन, S फॉर स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, एंड R इज फॉर रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट। तो ये 2 जो एक्रोनिम्स हैं CSR की, ये जड़ पे हैं उस डिस्कशन के in a way which began so many years ago, and
when we were at IIC, and I believe Dr. Chatterjee was here in the morning, he's like the Grand Master, the Temple of Shaolin के वो super Grand Master और हम लोग उनके शिष्य हैं. तो 10 साल से हम implement भी कर रहे हैं programs को. तो जो औचित्य था, the real purpose of the legislation was that can corporates bring in their expertise in technology, project management and innovation to catalyze nation building. और जो CSR का पैसा है वो शेयर मनी है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो टैक्स पेयर मनी है. तो ये बहुत खूबसूरत जुगलबंदी होनी चाहिए. मैं थोड़ा शायराना आंसर भी दूंगा, आपने शायरी से स्टार्ट किया अगर पूरे डिस्कशन, इसीलिए जान के किया था. इसीलिए जान के किया था. और आप लखनऊ, आप कानपुर से और मैं लखनऊ में पढ़ा हुआ, दोनों नवाब और इसका एक एरिया भी है ये. तो इसकी जुगलबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स पेयर मनी है और वो शेयर होल्डर मनी जो है ये कैसे कन्वर्ज कर रहा है. एंड द इंटेंट इन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का एक डिस्कशन भी हुआ था. आपके ये former finance minister Mr. Sinha used to be there, and Yashwant Sinha. तो section 135 को लेके आया गया उसमें in this companies bill of 2013, and this was the process to replace the companies act of 1956. 1956 का companies act था, उसके बाद में 2013 में ये amendment करके आया. तो उसमें section 135 insert किया गया और पर्पस उस इंसर्शन का ये था कि कैसे ये कॉर्पोरेट एक्सपर्टीज, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 90s में लिबरलाइजेशन हुआ था. उस दौरान में आई रिमेंबर, अगर आप लोगों ने लिबरलाइजेशन तो देखा होगा, नरसिम्हा राव यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, मुंटेक सिंह अहलूवालिया वाज देयर, एंड मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. मुंटेक सिंह अहलूवालिया उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन होते थे, एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज नरसिम्हा राव. उसके कुछ आसपास और उसके कुछ पहले अगर आप याद करो, सोवियत यूनियन में कुछ हुआ था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर गॉर्बेचेव? एक उन्होंने दो चीजें की थी, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका. किसी को याद है ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका? आई थिंक जेनी वाला जाने का जरूर, कम्युनिस्ट. सॉरी आई एम जस्ट जोकिंग. सो यू रिमेंबर ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका? व्हाट वाज ग्लासनोस्ट? ओपननेस, एंड पेरेस्ट्रोइका वाज चेंज. तो ओपननेस और चेंज जो था वो गॉर्बेचेव लेके आया था. उसके बाद येल्सिन वाज अनदर गाय हु केम इन, एंड देन फिर सोवियत यूनियन टूटा था और फिर अलग अलग कंट्रीज निकली उसमें. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बोला गया उसको, CIS करके सब्सिक्वेंटली. सो लिबरलाइजेशन जो था वो एक सीडिंग था इस पूरे प्रोसेस को एनर्जाइज करने के लिए. और गवर्नमेंट ने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किया असीम उस दौरान 1990s के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, इंस्पेक्टर राज हटा, लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उतना अचीव नहीं कर पा रहे थे. तो कैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो कोर एसेंस था जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको कैसे हम एम्बेड कर सकते थे, जो कि शेयर होल्डर वाला वेल्थ है, थ्रू कोलैबोरेशन एंड जुगलबंदी विद द टैक्स पेयर थिंग. और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इसका ट्रस्टी ओनर है, द ट्रस्टी ऑफ दिस शेयर होल्डर वेल्थ ऑफ 2% इज द CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड. जो कमिटी होती है बोर्ड की, वो इसकी ट्रस्टी है. वो डिसाइड करती है एक पॉलिसी बना के, और बोर्ड उसको अप्रूव करता है कि ये पैसा जो है 2% ये कैसे खर्च होगा. सो दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग कि ये पैसा सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो टैक्स पेयर मनी है, एंड दिस इज शेयर होल्डर मनी. सो जितने भी लोग आप लोग यहां बैठे हैं, अगर आप ये चीज को समझ सकें कि इफ यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम एन NGO साइड, or you are granting money to an NGO from the donor side, if you understand the intent of the law and this dynamics, तो आप उस चीज को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे. So this ये सोच थी उस समय असीम कि कैसे हम एक ऐसा, अगर आप देखें 10 साल के बाद, the proof of the pudding is in the eating. हम आज यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि कुछ था उसमें दम. तो मैं तो हर मंच पे बोलता हूं कि हमारा वोट ऑफ थैंक्स जाना चाहिए टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द मोस्ट अमेजिंग आई वुड से, बिकॉज उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल बोलता है, हमें एक ताकत दी कि हम अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं. इस कॉर्पोरेट ताकत और इस इंटेलिजेंस और इस टेक्नोलॉजी को लेके हम अदरवाइज जो थिंक थ्रू होता था, क्योंकि हमारा देखो, अगर आप याद करें ब्यूरोक्रेसी, माय फादर वाज एन IAS ऑफिसर 1961 बैच, एंड आई रिमेंबर व्हेन ही यूज्ड टू टेल मी फ्रॉम द UP cadre that when he had joined the IAS, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भी गए थे, तब लाल बहादुर शास्त्री यूज्ड टू बी the Prime Minister of India, and yes, exactly.
तो बहुत कुछ हमारी जो शेपिंग हुई थी वो रशियन सिस्टम से हुई थी, यूएसएसआर से। अगर आप इंडियन आर्मी को भी देखेंगे तो जो स्टील फ्रेमवर्क था हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जो इसको बेसिस पे गवर्नमेंट चलती थी, वो एक तो ब्रिटिश सिस्टम से ट्यून था और उसके बाद सोवियत का काफी भी एक एंगल रहा था, सोवियत यूनियन का। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ, इंस्पेक्टर राज हटा, वो इंस्पेक्टर राज बहुत हद तक कम्युनिज्म का एक एलिमेंट भी था। तो इस सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द लॉ। इफ आई गेट टू नो द इंटेंट ऑफ द लॉ, देन ऑल योर आंसर्स become easier to answer, your questions become easier to answer. So when we are doing this discussion, मैं आप सबसे भी ये बोलूंगा कि आपके अगर जहन में कोई भी सवाल उठता है इस conversation में, you are free to raise your hand and we can have a dialogue also. And the dialogue could be a cross fertilization as well. Yeah. So we have space for some You have, audience you questions. have, Yeah. you have. So now when you look at the CSR law after 10 years, हाँ थोड़ा माइक हाँ थोड़ा गूंज रहा है। हाँ। ये भी बहुत पास में, तो इसकी भी जुगलबंदी तो नहीं हो रही है कुछ? अच्छा, okay, maybe we, okay. So now, so after 10 years, when you look at the CSR law, हाँ, I think we'll use the. I think ये थोड़ा दूर वाले में बैठ जाओ या तो। I think there is some echo happening. हाँ, उससे कर लो। Should I take this? पर ये ऑफ भी नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, ठीक है, ओके। Am I audible? Yeah. Okay. So now, after 10 years, when you look at the CSR law, did you ever envisage that it would become so big after a while? In fact, interestingly, we did. And in fact, अगर आप एक गूगल करके देखेंगे, मेरा 10 साल पहले का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है 2014-15 का, वेयर आई हैव सेड कि 1 लाख नई नौकरियां आएंगी। मैं तब मिनिस्ट्री में था और मैं एक वर्टिकल में था जो डॉक्टर चैटर्जी ने बनाया था स्ट्रक्चर। आई वॉज हेडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां हम तमाम कोर्सेज कराते थे सीएसआर प्रोफेशनल्स बनाने के लिए। और आई थिंक अभी यहाँ हीना भी मुझे दिख रही थी, वो मेरे संग काम करती थी, वो स्टूडेंट भी थी हमारी। तो हम लोग तब ये कह रहे थे कि कार्डर ऑफ सीएसआर प्रोफेशनल्स बनना पड़ेगा। जैसे जब मैनेजमेंट आया तो आईआईएम्स ने एमबीएस क्रिएट किए, अगर आपके आईआईटीज हैं तो उन्होंने इंजीनियर्स क्रिएट किए। सीएसआर का कानून आने पे आपको एक कार्डर ऑफ सीएसआर प्रोफेशनल्स चाहिए था, जो कि लाइक यू आर अ सीएसआर प्रोफेशनल असीम एंड नाउ यू आर हेडिंग केडेंस सीएसआर। अब अगर केडेंस वाले किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग में लगा दें आपकी जगह पे, तो कबाड़ा कर देगा ना उस 2% का। लेकिन अगर एक ढंग के बंदे को लगाएंगे जो कि उस सोच का है, जो कि समझ को, इस जुगलबंदी को समझ पा रहा है, टैक्स पेयर और शेयर होल्डर का जो ये कोलैबोरेशन है, तो आप एक अच्छे एनजीओ को चूज करोगे। मैं तमाम एनजीओ से ये भी कहूंगा कि आप फंड रेजिंग की माला जपते रहते हैं सब एनजीओ। मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूं। सबसे अच्छा तरीका फंड रेजिंग का, पैसा कभी मत मांगिए आप किसी से। योर वर्क इज द फंड रेजर एंड द कम्युनिकेशन ऑफ दैट वर्क इज द फंड रेजर फॉर यू, नॉट योर जमान। वो पैट ऑन द बैक मत करें हम, तो कम्युनिटी आपकी जब बात बोलेगी। तो ये आज क्या मुकाम पे पहुंचे हैं हम असीम, की शुरुआत हुई थी जब गवर्नमेंट इसको कहती थी कि करो, कॉर्पोरेट कहते थे कि भाई ये क्या एक और मुसीबत कर दी आपने, यू पुट इन अनदर कॉर्पोरेट टैक्स। तो हम कहते थे नो, दिस इज नॉट अ टैक्स, डोंट गिव इट टू गवर्नमेंट, कीप इट अंडर द ट्रस्टीशिप ऑफ द सीएसआर कमिटी ऑफ द बोर्ड एंड देन गिव इट टू एनजीओज हु आर डिजर्विंग, हु कैन मेक अ डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स को बात समझ में आ गई। मैं आपको एचसीएल फाउंडेशन का एग्जांपल दूंगा, शिव नाडर, आई वर्क वेरी क्लोजली विद, यहाँ हमारे पीपल बाबा भी आए हुए हैं। सो शिव नाडर की कंपनी एचसीएल टेक, आई रिमेंबर आज से 7-8 साल पहले उनका बिजनेस था टर्नओवर $5 बिलियन। टुडे दे आर ऑलमोस्ट हिटिंग $15 बिलियन। उनका सीएसआर का बजट भी बढ़ता जा रहा है और उनकी बिजनेस भी बढ़ती जा रही है। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है 10 साल बाद, कि जिन कंपनियों ने अच्छा सीएसआर किया है वो और ग्रो कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ बिजनेस केस टू सीएसआर। तो लास्ट 10 सालों में कॉर्पोरेट एनजीओज को तो लगा कि बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं हर सभी एनजीओ से बोलता हूं समुद्र के नमकीन पानी जैसा है। यू नीड टू नो हाउ टू रिमूव द सॉल्ट बिफोर यू ड्रिंक इट। फॉर कॉर्पोरेट्स दे हैव अंडरस्टूड स्लोली दैट इफ दे डू इट स्ट्रेटेजिकली, तभी मैंने सीएसआर में का कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस, सी एस इज स्ट्रेटेजी इन आर इज रिजल्ट्स। अगर वो ये समझ गए बोर्ड लेवल पे कि देयर इज अ बिजनेस केस टू इट एंड आई मस्ट नॉट स्पेंड इट टू गेट डायरेक्ट बिजनेस बेनिफिट, बट आई विल गेट कॉरलरी बेनिफिट। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। अभी जो सबसे बड़ा चेंज है असीम, जो लास्ट 2 सालों में मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम बहुत से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के संग मैं खुद भी काम करता हूं, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, हम बहुत रिमोट एरियाज में काम करते हैं। वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो भी हमसे डायलॉग कर रहे हैं कि साहब हमारे ये स्कीम्स हैं, इनको कैसे बेहतर हम कर दें।
वहां का लोकल एमएलए है, लोकल एमपी है, वो भी कॉन्वर्सेशन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद में मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की सिचुएशन में आ रहा है। वी कैन यूज CSR टू स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज अगर इलेक्शन करने आप कल अगर वोट लेने जाते हैं, आप अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएं, आप भी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पीपल बाबा आप अगर खड़े हो जाएं, आप इतने पेड़ लगाते हैं और आप बोले कि आप मुझे इलेक्ट करिए, नोएडा में देखिए मैंने कितने उपवन क्रिएट किए हैं, आप मुझे एमएलए बनाइए और मैं इसको सुंदर उपवन बना दूंगा पूरे नोएडा को। क्या ये मुद्दा बन सकता है इलेक्शन लड़ने का? ना कि तुम किस धर्म से हो या किस जात से हो। तो CSR हैज गिवन एन अमेजिंग ट्विस्ट टू आवर इंटायर कंट्री। यूएस इलेक्शन में भी ये डिबेट का पॉइंट था, क्लाइमेट चेंज, जब वो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की हुई। मतलब मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, परसों में अल्मोड़ा में था, मैं कुमाऊनी हूँ और मैं देख रहा हूँ वहां पर कि क्या हालत हो रही है। भूस्खलन उसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स। मैं बचपन से मसूरी जाता आया हूँ, मेरे ग्रैंडफादर वहां रहते थे। अब मुझे मसूरी जाके इतना दुख होता है, वहां की मॉल रोड में व्हेन यू गो, रस्किन बॉन्ड, इफ यू हर्ड ऑफ रस्किन बॉन्ड, ही स्टेज in Mussoorie and you can often see him walking there. You are seeing big SUVs moving on the mall road in Mussoorie, guzzling out carbon dioxide, carbon monoxide. तो जो चेंज 10 साल में आया है असीम, वो ये है कि अक्लमंद को और समझने वाले को ये समझ में आ गया है कि अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे इस CSR का, तो ये कारतूस है, ये इट इज लाइक अ 2% एटम बॉम्ब, और आप इससे मैसिव चेंज ला सकते हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट। तो तभी आप जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं यहां पर, व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट, थिंक ऑफ इट एज एन एटम बॉम्ब, एज अ पॉजिटिव एटम बॉम्ब। आप में से कितनों को पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, WTC के जो 2 ट्विन टावर्स है, वो 15 मिनट में कैसे गिर गए? कोई मुझे बता सकता है क्या? दिस इज हाईएस्ट इंपैक्ट। मतलब CSR का इंपैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, बट ऑन द पॉजिटिव साइड। दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, बट इंपैक्ट इज इंपैक्ट। कैन एनीबडी टेल मी कि वो 15 मिनट में कैसे गिरे? एनी इंजीनियर्स हियर, एनी साइंटिस्ट हियर, एनी साइंस स्टूडेंट्स हियर? यस, नो। 15 मिनट में कैसे 105 स्टोरी गिर गया? बट हाउ एंड व्हाई? यस मैम। नहीं 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 नहीं, 1 साल की रिसर्च की थी उन्होंने, पर वो फ्लाइट तो टकरा गई बीच में 50वीं फ्लोर पे, पर कैसे वो 15 मिनट में गिरा कैसे वो? अब आप अगर ये समझ लेंगे कि ओसामा बिन लादेन ने क्या रिसर्च की थी, वही एनजीओ को करना है इंपैक्ट जनरेट करने के लिए, तो आपको फंडिंग की धार मिल जाएगी। उन्होंने ये फाइंड आउट किया, एविएशन फ्यूल, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और अगर वो प्लेन, इफ द प्लेन crashes into the building, then within how many seconds this number of liters of aviation fuel, depending on the size of the Boeing, उसका मेल्ट, और जो भी बिल्डिंगें थी वो स्टील गर्डर्स पे खड़ी हुई थी, स्टील, उस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट। सो दे कैलकुलेटेड, अगर इतना ये स्टील है, उस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितनी देर में आ जाएगा, इतने लीटर्स ऑफ ऑयल को बर्न करने में, एंड कैन वी क्रॉस दैट मेल्टिंग पॉइंट, और पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये एक एनजीओ को करना है जब आप एक प्रोजेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं। ये जो 2% है, ये बालाकोट अटैक है, जब आपने टेरर अटैक किया। आई ऑलवेज डिफाइन इट लाइक दिस। तो 10 साल में ये हुआ है असीम। जैसे हम भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, मैं इंडियन आर्मी के संग काम कर रहा हूं पिछले 8 साल से। बारामूला, कुपवारा दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेरर इन्फेस्टेड थे। आज वहीं के बच्चे जो हैं, जिनके हाथ में AK-47 और पत्थर थे, आज उनके हाथ में कलम है और वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। वहां की लड़कियां जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। तो 10 साल में जो चेंज आया है, वो ये पर्सपेक्टिव का भी चेंज आया। और मुझे ये खुशी होती है कि जब ये कानून बनाया गया था, जिस मकसद से, द इंटेंट बिहाइंड द लॉ इज समवेयर गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन wherever the people managing the game are understanding the deeper level. Wherever they are doing कि एक एम्बुलेंस घुमा के ले आओ, एक उधर एक पेड़ लगा दो, 1-2, और उसको दिखा दो कि तुमने कर दिया, वो तो टिक बॉक्स एक्सरसाइज हो गई, वो भी करने वाले हैं। लेकिन जो गहराई पे जा रहा है, वो फिर मेजर चेंज लेके आ पा रहा है। दैट इज द डिफरेंस। और इसमें शुरुआत में एनजीओ तो जुड़ी रहे थे पॉजिटिवली, लेकिन फिर कॉर्पोरेट्स को समझ में आया कि बिजनेस बढ़ सकती है, और अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनने के लिए, इफ यू कैन ब्रिंग इन गुड 2% CSR like a surgical strike. So CSR is like a surgical strike to the development sector. I'm giving you various graphic examples here. I'm a school teacher also, I teach maths.
तो मैं बच्चों को मैथ्स में भी एग्जांपल्स देके पढ़ाता हूं कि आप उसको विजुअलाइज कर सको। अगर आप ये विजुअलाइजेशन करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ना, प्रपोजल, और जब आप प्रेजेंट करेंगे डोनर को, तो आप इस अथॉरिटी से प्रेजेंट करिए कि वो बोलेगा अरे एक क्यों, आप 2 प्रोजेक्ट क्यों नहीं ले रहे हो मुझसे, फिर आप करके दिखाइए उसको। सर आपने जो बात की उसका अगला क्वेश्चन उसी पे है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और रिमोट एरियाज हैं, हाँ। तो उन पे कितना सीएसआर जस्टिस कर पाएगा? कई बार सीएसआर पे हर फोरम पे ये कहा जाता है कि वो मेट्रोज तक सीमित रह गया या एम्प्लॉय एंगेजमेंट की वजह से वही आसपास ही होता है। तो जो लोकल एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके बियॉन्ड वो शैकल्स कितना तोड़ पाया सीएसआर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब जैसे मैं तो जहां भी आज जवाब देता हूं, मैं खुद केस स्टडीज बताता हूं जहां हमने खुद से काम किया है। तो जब हम बारामुल्ला गए थे, वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो आर्मी उस समय ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं उसको, दिस कॉल्ड ऑपरेशन सद्भावना, ऑप सद्भावना, इफ यू आर फ्रॉम अ फौजी फैमिली और यू नो द वे द आर्मी वर्क्स, इट वाज टू क्रिएट अ गुडविल विद द आवाम। आवाम मींस द कम्युनिटी ऑफ कश्मीर। तो उन्होंने जब सीएसआर देखा तो आर्मी ने हमसे कहा कि ये इसको जरा हम जोड़ के देखते हैं। तो उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आज 8 साल के बाद में इतना चेंज है कि आज अगर आप श्रीनगर, आप में से पता नहीं कोई पिछले 1 साल में श्रीनगर गया है क्या? कैन एनीबडी रेज देयर हैंड? हैज एनीबडी गॉन टू श्रीनगर? यू विल सी द काइंड ऑफ फुटफॉल्स। टूरिज्म जो है वो छत को तोड़ के निकल रहा है एक तरह से। अच्छा, अभी क्या हो रहा था असीम, आर्मी का डिप्लॉयमेंट अभी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपका अच्छा सीएसआर करने से जो आदमी बंदूक और पत्थर उठा रहा था, अगर वो कलम उठा के ग्रोथ देने लगेगा तो वो जीडीपी कंट्रीब्यूटर बन जाएगा, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, रादर देन कि पुलिसिंग की वजह से आर्मी के ऊपर टैक्सेशन का पैसा। तो कितनी खूबसूरत जुगलबंदी है। अगेन मैं जुगलबंदी पे आ रहा हूं कि अगर 2% ओएनजीसी ने फंडिंग की थी हमारी स्टार्ट, अभी हम जेनपैट भी कर रहा है, आईएफएल फाउंडेशन, अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट ताज ग्रुप के स्टार्ट किया, इंडियन होटल कंपनी, क्योंकि उनका ताज विवांटा भी है श्रीनगर में। तो ये सबको दिख रहा है कि अगर हमने इस 2% को अच्छे से किया तो बिजनेस भी इंप्रूव होगी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दोनों में डीसीज जो हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स, उन दोनों ने ये कन्वे किया जब देखा कि क्या हो रहा है, कि कैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज और बढ़ाई जा सकती हैं। तो सीएसआर को हमें कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना चाहिए कि पैसा कितना है, हमें उसको कैटेलिटिक देखना है। एक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, कि वो खुद इक्वेशन में नहीं जाता है लेकिन वो कैटलाइज कर देता है। तो सीएसआर हैज टू बी अ कैटलिस्ट। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मैं तो 2 की कहानी खुद सुना रहा हूं, बहुत से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये जो 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जहां हमने काम किया 7-8 साल से कर रहे हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट थे जो पिछड़े हुए भी थे, पिछड़ा प्लस मिलिटेंसी। I think Brigadier Williams is here, he would know, because as an army Fauji, invariably he has been in Kashmir, he would know the challenge is there. And it is, जैसे हम कुपवारा में 41 RR के संग काम कर रहे हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्री, 41 राष्ट्रीय राइफल्स, और इधर हम 19 RT ब्रिगेड के संग काम कर रहे हैं। तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें भी क्या हुआ है, मैंने तो एनजीओ बताया, कॉर्पोरेट बताया, गवर्नमेंट बताया, जो आर्मी ऑफिसर्स भी से जो मेजर था वो कैप्टन से मेजर, मेजर से कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जो थे जिन्होंने शुरू किया था, आज टुडे ब्रिगेडियर योगेश चौधरी हैज बिकम अ मेजर जनरल आल्सो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ही इज बिकम अ मेजर जनरल बिकॉज ऑफ सीएसआर, बट आई एम सेइंग कि अगर उन्होंने कहीं भी अच्छा काम किया तो वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप कंपनी हैं, चाहे आप एनजीओ हैं। इसीलिए ये कानून जो है ये इतना खूबसूरत है। मैं काफी समय बिताता हूँ, ये मैं किताब भी हम लोग, मैं अलग अलग ये पूरे गजट नोटिफिकेशंस का है, आप लोगों से भी शेयर कर लेंगे मान्य, मैं आपसे शेयर कर लूंगा, सबको शेयर कर लीजिएगा, उसकी गहराई तक जाइए, उसका अध्ययन करिए। देयर इज सो मच टू लर्न, एंड दैट्स व्हाई द 2 रिसर्च स्कॉलर्स आई हियर understand the depth of the opportunity that this legislation is giving us, and what all you can do, whatever you are doing, how you can magnify it for the better. कोई ऑडियंस से क्वेश्चन पूछना चाहता है? मेरे पास तो और 4-5 क्वेश्चन है, बट अभी 10 मिनट ही और बचे हैं मेरे पास। हाँ, yes, so anybody from the Sona is there. So fantastic conversation between 2 of you, and I totally agree with Nikhil on what he was saying. Challenges have to be faced and we need to actually address them. We are seeing that the CSR laws have been very good, because before there was nothing. There was no proper guidelines, there was no proper route, and a lot of monies were not coming in the country itself. It was being sent back. So it's good indirect tax, as I call it, to have this there and make sure that this is happening. When we talk about sustainability, okay, when we
when we think about the word sustainability, and this is what a lot of us, I mean, part of my panel we were talking about, is that when it comes to the poor, they don't even have a bowl of rice to eat, okay? I feel that it's very important for us to also strengthen our base for them, like in terms of free education, free healthcare. These are the things which are the foundation for a farmer to be healthy, or a person to be healthy to work or to study, because we've seen that if there's not proper nutrition at the time of birth, there is a sort of weakness in the brain formation, etc. In that case, how do you apply the word sustainability for education and healthcare? Because when you look at a sustainable model, it's usually something that you pay something for. So how do you explain the word sustainability in this case? वेरी गुड क्वेश्चन सुमना. मेरा ये मानना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत मजबूत है विथ वेरी गुड इम्पैक्ट, योर श्योरेस्ट बेट फॉर सस्टेनेबिलिटी इज द कम्युनिटी विच इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. दे विल नॉट लेट इट स्टॉप, बिकॉज इफ द कम्युनिटी बिगिंस टू गेट द बेनिफिट, then they know it that it is their lifeline. So suppose you do an education program somewhere, or you do a health program somewhere. See, when a disaster happens, who is the first responder? It is the local community, right? So in tribal areas, the best forests are there because it is the tribals who sustain the forest, because they survive from the forest. It is, if you read anthropology, you will find that in many places, when the so-called concept of development was brought in and the locals were removed, the trees were cut unnecessarily. I'm finding it so unabashedly happening in the hills. And I said, I'm a Pahadi, and I know, and my heart cries when I see that. So, in areas like education, in health, critical is that any intervention we do, if we are able to generate impact in such a way where the community feels tangible, measurable benefit, then the surest bet for sustainability is the community itself. Because वो community ensure करेगी DC के ऑफिस में धरना देके कि वो गवर्नमेंट के जो फंसे हुए प्रोग्राम है वो निकलवाएगी उनको, नहीं तो DC को उठा के फेंक देगी वो. MLA को they will kick out the MLA, they will kick out the MP, because the funds are there and they are not reaching. So how to catalyze that flow of the taxpayer money is where the impact is critical with that 2%, so that the people rise and they ask for what is theirs. And that is the only way it can sustain. One can say that government will adopt it, new funder will come in, and all of that is good, but the core of it is the community should get the sense and the smell of the benefit. They will ensure that it survives, and they will find ways to do it. I have seen that communities are resilient. It is the community which is resilient, and it transcends time and decades and space. So the key is that, Sumana, in my experience. Thank you for your question. Person on the right has a question. I hope that covered your query. Sure. Hello Nikhil. My name is. So I come from the waste management industry. We are into electronic waste management primarily. हमारे इंडस्ट्री में एक चैलेंज आती है which is you spoke about community action, so my question is on that. There are two segments handling waste in the country today, the informal sector and the formal sector, right? Now, there is a lot of talk and effort that is being going towards formalizing the informal sector. Challenge primarily ये है कि recycling technology अलग है, और जो hazardous component है कोई भी waste का, informal sector उसको properly recycle नहीं करती, हम उसे properly recycle करते हैं. लेकिन collection etc में informal sector का कोई जवाब नहीं है, हमसे वो decades ahead hai. Absolutely. So if we look at from a CSR standpoint, formalizing the informal sector in any waste management, what do you suggest? How can this be done, or what are your two cents? Beautiful question, and I will answer your question because I'm a sports guy, and how Rahul Dravid answered a question on how should I force Virender Sehwag to start playing like Sachin Tendulkar. So Virender Sehwag is your informal guy. Sachin Tendulkar is the formal structure. Right, but it is Virender Sehwag who scores the maximum number of triple centuries. So the key is that. मैं बहुत सारा analogies देके अपने answers दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा.
Now, if I'm a good coach, if I'm a good Rahul Dravid, I will perceive Virender Sehwag, the informal कबाड़ी वाला जो घर पे आता है आपके, और मैं सचिन तेंदुलकर को भी व्यू करूंगा, right? Because that's the formal copybook style cricket, like Sunil Gavaskar, Gundappa Vishwanath, people like that. I should come out with a project model where I can encapsulate the core skills and the benefit of the Virender Sehwag का जो flick है, जो कि reflexes का game है, as compared to copy book वाला. दोनों की अपनी value है, हैं? पर the formal is the grid, maybe the formal structure which is governance and which is all of that, but sometimes that also spoils the run making or the strike rate of a Virender Sehwag, because that is impact. So the project that you make has to get a hybrid element of the both, and therefore Rahul Dravid has to be a grandmaster who understands Tendulkar as well as Sehwag, who understands the formal sector ka rules and regulations, and who understands the kabadi wala who comes to your house and picks up the kabadi. And I have never understood, I stay in ATS in Indrapuram, I never understand when the kabadi wala come, and I find so many people haggling with them कि आप 14 रुपए किलो पेपर ले जाओ. मैं बोलता हूँ तुमको उसको पैसा देना चाहिए कि तुम्हारा कूड़ा लेके जा रहा है. Why are you taking money from him? So मतलब कहीं ना कहीं there is an attitudinal change also that is to be required, where the Rahul Dravid must tell the parent of Tendulkar and the parent of Sehwag that भैया कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें कि हम बेस्ट आउटपुट निकाल सके. So that would be my answer to your question. Sir, I'll ask my favorite question now. It is my favorite question. You have also been an ex-cricketer, I know. नहीं, but my question is कि जो ये CSR summits and conclave होते हैं, हाँ. तो कई लोगों को उसको लेकर बहुत एप्रीहेंशन भी है और हेजिटेशन भी है. वो नहीं आना चाहते कॉन्क्लेव्स में, समिट्स में. वो कहते हैं उससे फायदा नहीं होता है, या हमको ग्राउंड पे काम करने से मतलब है, हम नहीं आना चाहते. वी डोंट वांट टू पुट फॉरवर्ड, वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट. या इन समिट से क्या होता है, हर वीक ही कोई CSR समिट हो रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन योर एक्सपीरियंस हाउ द इकोसिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, पुट फॉरवर्ड इन अ मोशन through these CSR conclaves and summits? Again, a beautiful question, and I'll again give an analogy actually. Suppose I'm a heart surgeon. I do a bypass surgery in the morning, and I know how the heart is beating and how many stents I'm putting. Now, putting of the stent means that blood flow is going. It means taxpayer money is reaching the beneficiary. The beneficiary is the heart. Now, if I'm a good heart surgeon, then I'm then teaching surgery in a medical college also. I can actually take some classes in a week and schedule my surgery, that maybe I should definitely do the surgery because it tells me how the heart beats and what are the issues of the heart today. So my heart surgery is my field work. My heart surgery is my field work. I must be on the field. If I'm the principal of a school, I should definitely teach a class. Many school principals stop teaching. So I run my own NGO, and I actually spend in 10 days I'm on the field myself in my different locations, because जब तक मैं जमीन पे नहीं जाऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा. अब मैं वो अगर कर रहा हूँ और मैं सर्जरी कर रहा हूँ और मैं फील्ड में जा रहा हूँ और फिर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ टाइम शेड्यूल मैनेज करके, और मैं ऐसे इवेंट में आ रहा हूँ, तो जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो मैं आपको इस किस्म के एग्जांपल्स भी बता पा रहा हूँ. नहीं तो मैं पढ़ के आके बता रहा होता, मैं एक्सटेम्पोर बता रहा हूँ. मैं क्यों बता पा रहा हूँ? बिकॉज मैं वो कर रहा हूँ, और वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अगर मैं बोलूंगा इस तरह से. So there has to be a right balance, Aseem. The beauty of the law is that it gives freedom to everybody. It gives freedom to Amanya, who's doing this amazing event here. It gives to Ramcharan ji, Be Vocal वाले अभी मुझे दिख रहे थे, वो भी अपना कर रहे हैं. तो वो सबको मौका भी दे रहा है. मेरा सबसे ये कहना होता है ऐसे में कि because if you're all doing it because of this legislation, and the intent of the legislation is that this 2 rupees should change the life of the poorest of the poor, then we must not lose the sight of the real intent of the law. जितना अच्छा हमारा इंटेंट होगा, मैं आप सबको एक और बता दूं चीज, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाता हूं जाके. आई कंडक्ट अ कोर्स ऑन CSR फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आई टीच CSR, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स ऑन टैक्सेशन. And in fact, Aseem is also going to take a class in the next batch. But many of them don't know section 135. So I tell the CAs also, अगर आप अच्छा ऑडिट करना चाहते हैं CSR का, तो कम से कम किसी NGO में जाके जरूर काम करें. So the answer to your query is a good mix of balance, the field, the engagement and the dialogue.
because then the dialogue will also have policy makers, and some of these people may go to the ministry and Niti Aayog and to government and say कि अरे यार ये बंदे ने ये बात कही और मैं कल एक पॉलिसी में जो लिख रहा हूँ वो तो इसका उल्टा है, विपरीत है, और मुझे टाइम जाने का है नहीं. आई एम नॉट हैविंग द टाइम टू डू द हार्ट सर्जरी, बट अ हार्ट सर्जन इज टेलिंग मी कि आज मैंने जो सर्जरी की उसमें मैंने देखा कि ये स्टेंट लगा के ज्यादा बेहतर काम हुआ है. सो आई थिंक दिस दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, एक विहंगम दृश्य रखिए, कीप अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द होल गेम, एंड देन फ्रॉम वेरेवर यू आर you can come out with the best possible answers. This is my experience. I'm 32 years now into the sector and 10 years into the CSR law. I can give this to you in writing. Whoever is an NGO can multiply their fundraising any number of times if you do it like this. Because you will yourself get the answers to your queries of how to raise resources. To the funders, I will tell you, you will find good NGOs. Because if your intent is to find good ones who actually deliver on the ground. This is the key thing. So a healthy mix is important. Again, the healthy mix is critical, as I told my friend over there ki Sehwag and Tendulkar, again a healthy mix wala situation. So that is the CSR, compassion, serenity, reflection. I said Atma Chintan, a lot of reflection should be done. So every weekend, all of you, if you are into the sector, you must do some Chintan, reflection. Where should I go? What should I do? Is it relevant? मुझसे बहुत लोग बोलते हैं, including my wife, कि you don't do any. Why are you doing this on a weekend? So I tell my wife also that there is no weekend for me, because on the weekend, do you stop taking oxygen on the weekend? Because if this work gives me oxygen, then there is no weekend. Weekend वो लेते हैं जो जॉब से परेशान होते हैं, वो कहीं भाग जाते हैं वेकेशन में. If your work is your vacation, that's why a lot of coaches say, don't train for victories, train the destination. The journey is as important as the destination. So CSR का जो process है, this dialogue, all of this is the journey, and the end goal is, so a healthy mix is what I would say. Okay, so we have only a couple of minutes left. So last question, I'll just wrap it up with this. In the next 5 to 10 years, how do you see the CSR domain shaping up? Oh, amazingly. I'm seeing a major now input coming in from the academia. I'm engaging with a lot of them, with IITs, with IIMs, etc. और मेरा उनसे कहना ये होता है कि जो आप कोर रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च अगर एविडेंस बेस्ड रिसर्च है, that evidence based research needs to go to NGOs for good projects, because eventually the project is the crucible where the money will come in to bring that. So the crucible is the atom bomb. So the next 5 years, I can see more better atom bombs, good atom bombs being created for larger magnification of positive change. And that is where these dialogues are important. And that is where the documentation that these two kids are doing there is important, so that people go back with more ideas to bring about better change. So I would thank you so much, Nikhil sir. I'll just like to wrap it up with my 2 cents as well here. So all the corporates sitting here, all the NGOs here, if the employees of your company are not engaging in a project, then that CSR project is kind of going nowhere. Volunteering is so important. Volunteering is very important, and if you are an NGO, you should encourage the corporate to come and volunteer, and if you are a corporate, you should ask the NGOs to bring in opportunities for the NGOs so that they can use the business acumen of the And thank you for highlighting this. For how many NGOs are here? So, and how many of you are getting CSR funds? Quite a few, huh? Okay. How many of you actually know Section 135? 2 hands now. Out of those, how many you know 9 clauses of Section 135? 0. 1. So that is what I'm saying. Some data analysis, need assessment that I do. You need to know everything over there at the back of your hand. At the back of your hand. Now volunteering, he says, बहुत खूबसूरत तरीका है फंड रेजिंग का. आप अभी 2 साल के एनजीओ हैं, 1 साल के एनजीओ हैं. सो मेनी पीपल कम टू मी कि सर अभी कैसे करेंगे, 2 ही साल हुए हैं. मैं उनको बोलता हूं कि आप कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग स्टार्ट कर दीजिए. इनवाइट कॉर्पोरेट एसोसिएट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स टू कम एंड सी योर वर्क. सो इफ यू आर मोर देन 3 years old and nobody is giving you money, say in Almora I did a goshti in SSJ University. मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को भी बुलाया, एंड आई ट्राई एंड टॉक अ लॉट विद द स्टूडेंट्स कि आप वॉलंटियरिंग कराइए कॉर्पोरेट्स को. The volunteer will go and tell the head CSR कि इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं. They become your ambassadors, yes or no? Yes, yes. Because the volunteer wants self-actualization. They also want to know that if this cadence company
का वॉलंटियर हूं मैं और केडेंस कंपनी किसी एनजीओ को पैसा दे रही है, तो ये अच्छा काम कर रही है. एंड देन when the volunteer comes to your NGO, you know what you should do? Have a presentation that sir or ma'am or whomsoever you are coming, do you know the money that is coming here is because of your hard work? Because when you worked hard in Cadence and your company has earned profit and that profit has crossed the eligibility of section 135, it is why because of that 2% this money is coming. Make that association with the volunteer. This increases the productivity of the volunteer because then he or she will say, I am working in a good company. And why should I leave this company even if my salary raise is less? अगर मेरा happiness quotient बढ़ रहा है और salary नहीं बढ़ रही तो भी ठीक है, मैं बीमार तो नहीं पड़ रहा हूँ. Salary बढ़ रही है लेकिन मैं BP से भी मर रहा हूँ, क्या फायदा? तो volunteering can actually help you jack up your fundraising strategy like anything. So that is where also the good use of social media comes in. The volunteers always put it on social media, and that's how your word is, exponentially put in there. We have. Are you an NGO? Okay. So I will exactly give you the answer of the surgeon because आपने मुझसे surgeon पूछा. If I am the surgeon, and you are the volunteer, then will I have a case of a patient with me before I go for surgery? I will call you. What is your name? Ameha. Meha. नेहा. तो मैं नेहा को बोलूंगा कि नेहा ये मेरा केस है, ये असीम का मुझे हार्ट सर्जरी करनी, सॉरी टू से जस्ट एग्जांपल है, डोंट फील माय हार्ट इज सो सपोज ही इज माय हार्ट पेशेंट जिसकी मुझे सर्जरी बाईपास सर्जरी करनी है और अभी 2 दिन बाकी हैं, तो मेरे पास इसकी पूरी केस हिस्ट्री होगी और आप नेहा आप मेरे संग वॉलंटियरिंग कर रहे हो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज अ स्टूडेंट जो होते हैं, आरए होती है क्या, रेजिडेंट्स होते हैं, तो मैं आपको पूरा केस बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए. सो मैं आपसे इसकी सर्जरी नहीं कराऊंगा पर मैं आपसे अपनी रिसर्च टीम में इनपुट दे सकता हूं. सो व्हेन आई एम एक्चुअली डूइंग अ प्रोजेक्ट देयर आर वेरियस वेज यू कैन एंगेज द वॉलंटियर by mapping the skill of the volunteer and the requirement of the project. That is what you have to do. Now when that person comes in, you can have a performance matrix also, that when this volunteer came for so many hours with this skill set, then what was the baseline of that activity and what is the end line after so many sessions. You then justify and you quantify and show it to the volunteer, show it to the head CSR. That volunteer, if he or she feels कि मेरे आने से वाकई इस बच्चे का गणित पे नंबर बढ़ गए या इस बच्चे की नौकरी लग गई और वो केडेंस कंपनी के हेड सीएसआर ने उसको मौका दिया था, तो वो क्या केडेंस के प्रति खुश होगा कि नहीं होगा? इट्स नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग. आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब में काम कर रहे हो, आपने 10 स्टूडेंट्स को अपने हब में बुला लिया और 10 वॉलंटियर्स लगा दिए उनके साथ, ये भी तो वॉलंटियरिंग हुई. एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. Right. Yes. So because in any situation, logical thinking, analytical thinking, ये सब skills तो हर जगह पे काम. Compassion के लिए कोई आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए. Compassion के लिए कोई electrical and mechanical engineer. Compassion is a horizontal. It's like a human thing. So in most of my volunteering engagements, I first do an orientation with the employees. कि उनको पता चले कि करना क्या है. Maybe Aseem and Manya, we could do at maybe your organization can do a session with Aseem and me on volunteering. हाँ. And we can tell you ways by which you can actually have volunteering programs. It's the most amazing way. वो उनका HR activity में उनका पूरा embed होता है. I'm doing a project with IBM where they have mandated hundreds of their people to volunteer in projects across India. हमसे उन्होंने कहा, you are our partner, give us your geographies, how many man hours you want, how many hours. So I think we have to now wrap up. Sorry. We have to now call. Just a second, ma'am. We have to wrap up for lunch. We will talk on the sidelines. So for lunch, at lunch you can speak. We'll talk. We can speak at lunch. We'll talk. Okay? So thank you so much everyone for your patience. I know there are many unanswered questions and many unasked questions also. And always the networking lunch is a good platform to ask all those questions. So sir is here, I am here, you can ask questions and I'd like to end with that शेर which मैंने जो start किया था, मैं उसके आखिरी के अशार आपको बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग इस शेर से करी थी कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ, मुखालफत से शख्सियत संवरती है मेरी. मुखालफत मीन्स क्रिटिसिज्म.
मुखालफत से शख्सियत संवरती है मेरी, मैं उन लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ, और साये से आजकल डर लगता है मुझे, मैं धूप में ही आराम करता हूँ। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वंडरफुल। और इनफैक्ट एक लास्ट मैं भी बोल देता, क्योंकि इन्होंने शेर बोला है तो मैं शेर के सामने एक हिरन भी रख देता हूँ। तो अगर शेर आपका CSR प्रोजेक्ट है तो हिरन गरीबी होनी चाहिए, हिरन बेरोजगारी है। तो जिस तरह से शेर स्टेल्थली इसको स्टॉक करता है, वो आपका अप्रोच होना चाहिए टू काउंटर एंड किल द हिरन। आप समझ गए क्या है CSR का डायनामिक्स? Excellent. थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Mr. Pant, and thank you, Mr. Asim. Please wait. We have to facilitate you. It was really, really wonderful and enlightening session. I know a lot of answers have been gone unanswered, but we have a networking lunch waiting for all of us. So I request Manya Singh to please come on the stage and facilitate Mr. Nikhil Pant and Mr. Asim, please.